Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to talk about the fuels. ठीक है, उनकी जो calorific value होती है, we'll be talking about that. वो क्या होती है actual में and how it can be measured for any fuel. हम लोग ये डिस्कस करेंगे along with the solar energy. So we'll be discussing the solar energy जो कि हमारी अर्थ को प्रोवाइड होती है. ठीक है, उसमें से कितनी यूजफुल है, हम यूज़ कर पाते हैं. उस सनलाइट में भी यानी सोलर एनर्जी में भी कितने तरीके की रेज हमें मिलती हैं. सो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू दैट, राइट. एंड वील कंटिन्यू द फ्यूल, क्योंकि अभी तक हम फ्यूल को डिस्कस कर रहे थे. हमने टाइप्स ऑफ फ्यूल देख लिए थे कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों तरीके के फ्यूल्स अवेलेबल होते हैं, राइट. सो ये जो फ्यूल्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दी थिंग्स जो कि हमें आगे की देखनी है, यानी कि सोलर एनर्जी हमारा फर्स्ट एनर्जी का टॉपिक होगा जिसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे. राइट, you all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiad. So basically अगर आप ये lectures देख रहे हैं then you are preparing for the school examination as well as the Olympiad. Alright, and that is the main thing that you can get such content from this videos lectures. Alright, that is the thing. Now if you want to join us then you can search out for the Telegram channels of our different classes. Alright, so 10th class के लिए TTB 010, this is what you have to write in the search box of the Telegram app. When you do so, drop down list में channel class 10 का appear हो जाएगा. You can join that channel and access all the DPPs and study material over there along with the notifications of the classes. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot as we as a team, we are providing you the content over here from the quota basically. Right, and the content you are going to get is you can say the best one, as we are trying to do so more and more efficiently, make it better, right, and that is the main thing. So and these lectures are free for everybody also, right. So if you are watching these video lectures, make sure you do that till the end, right, and you need to share these video lectures to your friends also, ताकि आपके जो एजुकेशनल गोल्स हैं वो तो जो है क्लियर हो ही हो, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के भी गोल्स क्रैक हो जाए. Alright, that is the main thing. आपको अपनी गोल्स तक पहुंचना है and we are helping you in this task. Alright, now in accordance to that we have also prepared some packages for you all. To access those packages you need to go on our website, that is www.talkingtextbooks.in. When you go on our website you are going to get two type of packages over there. The full package and the test series one. Alright, so full package contains all the necessary and minimum things you need to crack any examination, and the test series include the testing part over there. So basically full package जो है, you are going to get the study material, video classes, the recorded or the live ones, homework submission feature, bi-weekly quizzes, periodic test papers. And in the test series you are going to get the periodic test papers, bi-weekly quizzes and the classes. Alright, it can be the live or the recorded ones. Alright, so you are going to get these. So if you want to buy them you can use my discount code, that is CY Live, to get a discount of 30%. And if you want to know more about these packages then you can call us on the number 919549041111. Alright, so that is the main thing. If you have any query regarding these packages then you can call us on the number. Make sure you do that and we will be resolving all your queries over there. Alright, now let's promise ourselves that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. Alright, that is a must thing you should do. And the most important thing is कि हमें इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते पुराने चैप्टर्स नहीं भूलने हैं. Alright, those are the important ones also. ठीक है, that is why you need to remember them as well as you need to study this also. Alright, now let's get started. ठीक है, now जो हमारा lecture 2 है, that lecture is actually 2, that is we are going to study the calorific value of fuel and solar energy. Alright, so you are going to get study these things, we are going to get that. ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, solar energy, we will be seeing the composition of the solar energy, means the energy we are getting in the form the heat energy. ठीक है, heat and light जो हमें मिल रही है बेसिकली वो किस composition में हमें मिल रही है. ठीक है, uses of solar energy, then we look up to the advantages and limitations of the solar energy. Alright, so let's get started. तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की. हम अभी तक फ्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट.
फ्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल इज अ सब्सटेंस जिसका अगर हम कंबशन करा दें, ठीक है, तो हमें एनर्जी मिलती है, राइट। सो बेसिकली ऐसा कुछ जिसके कंबशन से हमें एनर्जी मिल रही है, राइट, दैट कैन बी टेकन एज अ फ्यूल। एंड वी स्टडीड दैट कि जो फ्यूल्स हैं वो 3 तरीके के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑलराइट, तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल ओवर देयर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो कोल, oil and natural gas, right? So that means you can take as a solid fuel, all right, liquid one and the gaseous one, ठीक है। So that is the 3 types of fuels over there. Now let's discuss what is the meaning behind the fossil fuel. मतलब ऐसा फ्यूल जो कि पास्ट का है, मीन्स ऐसा फ्यूल जो कि हमारे लिए अवेलेबल किया गया है, राइट, इट इज लाइक इनसाइड द अर्थ, ये अर्थ के अंदर से आता है सबसे पहली बात, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो फ्यूल है एक्चुअली में इट इज लाइक इट हैज ट्रैप्ड द सोलर एनर्जी, बट दैट सोलर एनर्जी जो कि पास्ट में अर्थ पे फॉल हुई थी उसको ट्रैप कर लिया गया है, ठीक है, लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सभी में दी केम फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, राइट। तो वो वहाँ कैसे पहुँचे, धरती के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आई, राइट, ये कैसे हुआ, दे ट्रैप्ड सोलर एनर्जी जो कि पास्ट में अर्थ पे फॉल हुई थी, राइट। एंड उस एनर्जी को ट्रैप करके इन द वेरियस प्रोसेस ओवर देयर, जो प्रोसेस चली है इनको फॉसिल बनाने में, राइट, वो प्रोसेस के बाद वी आर गोइंग टू गेट दिस ट्रैप्ड एनर्जी, राइट। और वो पुराने ज़माने की एनर्जी अब हम यूज़ कर रहे हैं वाइल दी यू कैन से यूजिंग एवरी अदर फ्यूल्स ओवर देयर, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्ट्रिक एनिमल्स और प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो बेसिकली पहले के जो प्लांट्स थे, पहले के एनिमल्स, पहले के जो वेजिटेशन थी वहाँ पर, ठीक है, ऑन अर्थ बेसिकली, तो तब क्या हुआ, सनलाइट फॉल हुई, राइट, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस से पूरा प्रोसेस करके एनर्जी बनाई, राइट, एंड देन एनिमल्स भी वहाँ पर थे तो उनको भी एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंड, जब कुछ ऐसा हुआ कि भाई किसी तरीके से इट कैन हैपन बाय एनी प्रोसेस, दे गेट बरीड इनसाइड द अर्थ, राइट, एंड आफ्टर दे गेट बरीड उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉइल जमा होता गया। फिर क्या हुआ, दे गॉट अप टू दी वेरी मच हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ and the high pressure because they are like under the soil, right। तो high pressure and high temperature ये situation, ये conditions वहाँ पे present हुई। उन condition के लिए, उन condition की वजह से we can say that कि आप लोगों को या उन condition की वजह से ये जो you can say plants के remains हैं, animals के remains हैं, they get converted into something you can see up to the coal, ठीक है, द गैसेज ओवर देयर दैट कैन बी द नेचुरल गैस, ठीक है, और यू कैन गेट अप टू द लिक्विड फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम, ठीक है, तो आपको वहाँ से क्रूड ऑयल मिल सकता है, यू आर गोइंग टू गेट द कोक ओवर देयर। सो बेसिकली ये जो रिमेन्स हैं वो पुराने ज़माने के जो एनिमल्स थे, ट्रीज थे, ठीक है, उन सब के थे, ठीक है, एंड उन्होंने जो सोलर एनर्जी ट्रैप की थी, उनके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी अब हम लोग इनके थ्रू यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो आप इस डेफिनेशन को फटाफट से लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं ये फॉसिल फ्यूल बने कैसे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल बनने के लिए फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉसिल फ्यूल बनते हैं कैसे, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, और ये कंडीशन कैसे की जा सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो ये कंडीशन हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सो बेसिकली फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, नहीं चाहिए बेसिकली, नॉट द ऑक्सीजन, राइट। सो दे आर गोइंग टू गेट फॉर्म्ड विदाउट द ऑक्सीजन, बट आसपास ऑक्सीजन अवेलेबल है। टू फुलफिल दैट कंडीशन, अगर वो किसी भी तरीके से सॉइल में दब जाते हैं तब ही उनकी ऑक्सीजन कट ऑफ हो सकती है, राइट। तो देखिए, द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर,
heat and bacteria convert the buried remains of plants and animals into fossil fuels like coal, petroleum and natural gas. Alright, तो ये जो आपको मिल रहा है fossil fuels, ये किसकी हेल्प से मिल रहे हैं? You are going to get this because of the pressure over there. जो प्रेशर वहां पे ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज जब कभी भी कोई भी चीज दब जाती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है अलॉन्ग विद द सॉइल इन द एयर. ठीक है, हीट, उसको हीट मिलती है अंदर से. ठीक है, देन दी बैक्टीरियाज, इनका रोल बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑक्सीजन की एब्सेंस में दे वर्क आउट. और वो क्या करते हैं, जो भी कुछ है, जैसे कि हम लोग का मेन प्रोसीजर क्या है, खाद बनाने का, राइट. तो ये जो खाद जिस तरीके से बनाते हैं उसमें अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं. सिमिलरली जब कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है, डेड रिमेन्स रहते हैं आइदर ऑफ द प्लांट्स ऑफ द एनिमल्स, दे गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग यूजफुल ओवर देयर. ठीक है, तो और कौन ऐसा करता है, वो बैक्टीरियाज ओवर वहां पे करते हैं. ठीक है, सो प्रेशर, हीट एंड द बैक्टीरिया ओवर देयर, दे आर डूइंग द केमिकल प्रोसेस ऑन दैट यू कैन से डेड रिमेन्स, राइट. एंड देन they are going to get the fossil fuel, right. It was the sunlight of long ago that made plants grow, which were then converted into fossil fuels. और वही sunlight जो plants ने use की थी उस टाइम पे, वही fossil fuel को बनाने में help हुई और वो energy उसके अंदर store हो गई. ठीक है, fossil fuels are energy rich compounds of carbon which were originally made by the plants with the help of sun energy. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो एनर्जी आई हुई है, ठीक है, दे आर टेकन एज द एनर्जी रिच कंपाउंड्स, राइट. तो उनके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी है सन की एनर्जी जो प्लांट्स ने ट्रैप की थी खुद के अंदर. ठीक है, व्हाइल डूइंग द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल. ठीक है, सो यू कैन से दैट कि वहां पे जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के मेनली, क्योंकि हमें जनरली कार्बन जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में हीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, और दी यू कैन से एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट. दैट इज द मेन थिंग कि वहां पर जो भी अवेलेबल चीजें होती हैं, राइट, वो सारी की सारी सन के एनर्जी को स्टोर करके दे बिकम द फॉसिल फ्यूल. एंड व्हेन वी गेट अप टू दैट, जब हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है, हम उसका कंबर्शन करते हैं, राइट, तब वो वापस से जो है बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, राइट. एंड दैट कैन बी टेकन एज द फ्यूल ओवर देयर. ठीक है, तो ये जो फ्यूल है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारी हेल्प करते हैं अभी. बट धीरे धीरे ये जो है, क्योंकि ये धरती के अंदर से निकल रहे हैं, राइट, मतलब इनका ये जो बने होंगे तो ये डेफिनेटली दे आर इन लिमिटेड अमाउंट. सम टाइम दे आर गोइंग टू बी फिनिश्ड, डेफिनेट सी बात है. एंड देन जब ये फिनिश हो जाएंगे तब हमें ये सोर्स तो मिलेगा नहीं, बिकॉज नेक्स्ट कोल मिलने के लिए वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मिलियन ईयर्स, राइट. तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी. एंड दैट्स हाउ वी हैव टू शिफ्ट टू दी सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ओवर देयर. कोल का अमाउंट जैसे ही फिनिश होता है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट दी थर्मल पावर प्लांट्स ओवर देयर, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, कोल से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, राइट. अगर कोल फिनिश हो जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे. ठीक है, आइदर वी फाइंड आउट समथिंग एल्स टू गेट द एनर्जी फ्रॉम इन दी थर्मल पावर प्लांट्स, आइदर वी स्टॉप दोज थर्मल पावर प्लांट्स, राइट. दैट इज द मेन थिंग कि जैसे ही कोल फिनिश हुआ वो बंद हो जाएंगे. ऑयल, अगर जैसे ही ऑयल फिनिश होता है, वी आर नॉट एबल टू गेट द फ्यूल बाय विच वी कैन रन आवर व्हीकल्स, राइट. तो हमारे व्हीकल्स को चलाने के लिए वी नीड समथिंग एल्स, राइट. जैसे ये फिनिश हुआ तब तो दिक्कत हो जाएगी. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड टू यू कैन से स्विच अप टू द इलेक्ट्रिक, राइट. तो अब हमारे जो व्हीकल्स है वो धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं. दे हैव द पावर ऑफ गेटिंग चार्ज्ड अप बाय द सन, राइट, द सोलर एनर्जी, राइट. तो ये तो ठीक है, हमने वी हैव फाइंड आउट समथिंग एल्स फॉर दैट. ठीक है, एंड अब आता है नेचुरल गैस. सो बेसिकली लिक्विफाइड नेचुरल गैस, राइट, एंड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बेसिकली सीएनजी, उससे भी हमारे व्हीकल जो हैं चलते हैं. बट आफ्टर गेटिंग फिनिश्ड अप टू दिट, हम लोग फिर कोई और स्विच अप करेंगे टू दी नेक्स्ट यू कैन से फ्यूल. ठीक है, तो बेसिकली फ्यूल्स के लिए हमें क्या करना होगा, ऑल्टरनेटिव देखना होगा. विच ऑल्टरनेटिव कैन रिप्लेस दीज वन, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी फिनिश सून, राइट. मे बी इन द अपकमिंग ईयर्स यू आर गोइंग टू गेट दैट न्यूज, right.
ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मेन मकसद यही है, किसी भी एक सब्सटेंस में से जिसमें से हमें एनर्जी लेनी है, लेट इट बी अ फ्यूल, ठीक है, उस फ्यूल में से हमें एनर्जी लेनी है। अब वो जो फ्यूल है, व्हेन वी बर्न दैट फ्यूल, वो फ्यूल का कितना अमाउंट, लेट इट बी लाइक कोई फ्यूल है, लेट इट कोल, ठीक है। अब कोल जो है 1 kg का हमने कोल ले लिया। अब ये 1 kg का कोल हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द यू कैन से कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। ऑलराइट, ऐसे ही हर एक अलग अलग फ्यूल की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जिस भी फ्यूल की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब 1 kg में वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, वो फ्यूल हम लोग बेहतर यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कम अमाउंट में, राइट। तो वो फ्यूल हमारे लिए बहुत अच्छा है। मेनली ऐसे फ्यूल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है, ठीक है, ऐसे फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा रहती है, एंड वही फ्यूल क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकता है इन वेरी स्मॉल यू कैन से अमाउंट, राइट। खुद का जो है वो काफ़ी कम अमाउंट है, एंड द एनर्जी बाय दैट फ्यूल इज लार्जर, ठीक है। वहीं पर कार्बन बेस्ड जो फ्यूल्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बेस्ड जो फ्यूल्स होते हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। वहीं पर हाइड्रोजन बेस्ड ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर लाइक वी कैन से दैट कि भाई अगर अवेलेबल हो तो वी शुड यूज अप टू द हाइड्रोजन वन, ठीक है, ताकि हमें जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट में और एफिशिएंटली हमें एनर्जी प्रोवाइड हो सके। सो देखिए, ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। हर एक फ्यूल जब वो बर्न होता है तो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। 1 kg का कोल, ठीक है, 1 kg का वुड, ठीक है, और द अदर वंस यू कैन से अदर जो आपको एनर्जी सोर्सेज मिलते हैं, अगर आप सभी का अमाउंट 1 kg ले लें एंड चेकअप टू दैट कि भाई आपको कितना ज़्यादा फ्यूल मिल रहा है, ठीक है, मतलब नॉट द फ्यूल, कितना ज़्यादा एनर्जी आपको मिल रही है उन 1 kg फ्यूल से, ठीक है, वो एनर्जी जब आप कंपेयर करेंगे तो इट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्यूल्स, राइट। तो जिसकी ज़्यादा अमाउंट होगा वही हम लोग बेहतर मानेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे, राइट। द यूजफुलनेस ऑफ अ फ्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कोई फ्यूल कितना यूजफुल है कितना नहीं, वो हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे डिसाइड करते हैं। अगर कोई फ्यूल 1 kg पे 300 जूल्स की एनर्जी दे रहा है और एक 1 kg का फ्यूल हमको सिर्फ यू कैन से 100 जूल्स की एनर्जी दे रहा है, तो हम लोग 100 जूल्स को उतना एफिशिएंट नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा इनपुट लगेगा, राइट। 300 जूल वाली जो एनर्जी हमें मिल रही है जिस फ्यूल से, वो फ्यूल हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा क्योंकि वो कम अमाउंट में हमें ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, ठीक है। The amount of heat produced by burning a unit mass of the fuel completely is known as its calorific value. तो अगर हम किसी एक यूनिट मास को ऑफ द फ्यूल, राइट, एक यूनिट मास ऑफ द फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं एंड जितनी एनर्जी हमें मिलती है, दैट मच ऑफ द एनर्जी जो है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा दैट मीन्स उतना ज़्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा, दैट मीन्स हमारे लिए वो उतना ही ज़्यादा यूजफुल भी होगा, ठीक है। फिर देखिए, द यूनिट ऑफ मास यूजुअली टेकन फॉर मेजरिंग द कैलोरीफिक वैल्यू इज ग्राम। जनरली ग्राम को यूज किया जाता है। 1 ग्राम ऑफ कोल, 1 ग्राम ऑफ अनदर फ्यूल, 1 ग्राम ऑफ अनदर फ्यूल, राइट। तो ये जो फ्यूल्स हैं इनकी जनरली 1 ग्राम से इनका यूनिट मास लिया जाता है एंड दे आर गोइंग टू बी बर्न बाय दैट एंड देन वी कैन गेट अप टू द कैलोरीफिक वैल्यू ओवर देयर, ठीक है। जैसे सो इट कैन बी सेड दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ अ फ्यूल कंप्लीटली इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप 1 ग्राम के फ्यूल को कंप्लीटली बर्न कर देते हैं तो जितनी भी एनर्जी आपको मिलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी, राइट। देखिए, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, अगर आप कार्बन फ्यूल यानी कि चारकोल, लेट्स से आप चारकोल के 1 ग्राम चारकोल को कंप्लीटली बर्न कर रहे हो, ठीक है, आपको मिल रही है 33,000 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1 ग्राम का चारकोल आपने बर्न कर दिया और आपको मिली है एनर्जी 33,000 ऑफ जूल्स, ठीक है। तो इसकी कैलोरीफिक हो जाएगी 33,000 जूल्स पर ग्राम, दैट वुड बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट चारकोल, ठीक है। अभी देखो, जूल जो है वो काफी ज्यादा छोटी एनर्जी होती है, मतलब यू कैन से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो वी यूज बिग यूनिट फॉर दैट, ठीक है। जूल काफी छोटा यूनिट हो जाता है इफ वी
टेक अप टू द अमाउंट, तो हम लोग किलो जूल्स में बात करते हैं, ठीक है। तो किलो जूल पर ग्राम वी कैन से दैट, एंड हम यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई 33,000 जूल्स है, यानी कि 33 किलो जूल्स पर ग्राम वुड बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द चारकोल, ठीक है। तो किसी भी फ्यूल को अच्छा है या बुरा है, या फिर वी शुड यूज इट मोर और नॉट, हमारे लिए कितना यूजफुल होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है किस पर, कैलोरीफिक वैल्यू पर, ठीक है। सो यू कैन गेट द कैलोरीफिक वैल्यू बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ दैट फ्यूल कंप्लीटली, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर गोइंग टू गेट वुड बी इट्स कैलोरीफिक वैल्यू ओवर देयर। रिमेंबर टू मेक श्योर दैट द एनर्जी जो है वो किस यूनिट में एक्सप्रेस की जानी चाहिए, दैट हैज टू बी द किलो जूल पर ग्राम ओवर देयर, ठीक है। तो आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। राइट, नाउ लेट्स टॉक अप टू दी नेक्स्ट थिंग, जो कि हमारे कैलोरीफिक वैल्यू के लिए ही है, ठीक है। जैसे कि देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स ओवर देयर, तो हमने यहाँ एक्सप्रेस किया है किलो जूल पर ग्राम में हर एक कैलोरीफिक वैल्यू को, हर एक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को, ठीक है। तो आप देखिए डंग केक, द डंग केक विच इज फॉर्म्ड बाय दी यू कैन से ऑफ दी काउ डंग, राइट, दैट इज द काउ डंग, जिसे हम हिंदी में उपला कहते हैं, और राइट फ्यू, और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। नोटिस कीजिए इस चीज को, वुड को अगर हम बर्न करते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमें 17 किलो जूल पर ग्राम मिलती है, ठीक है। कोल को अगर हम बर्न करते हैं 25 to 30 किलो जूल पर ग्राम हमें मिल रही है। चारकोल की बात करते हैं तो 33 किलो जूल पर ग्राम हमें एनर्जी मिल रही है, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी। अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को हम बर्न करते हैं तो इट वुड बी 30 किलो जूल पर ग्राम। डीजल या फिर फ्यूल ऑयल, इसको हम ले सकते हैं 45 किलो जूल पर ग्राम। केरोसिन ऑयल जो है 48 किलो जूल पर ग्राम की कैलोरीफिक वैल्यू रखता है। पेट्रोल इज 50 किलो जूल पर ग्राम की कैलोरीफिक वैल्यू रखता है। बायोगैस इज 35 to 40 किलो जूल पर ग्राम। नेचुरल गैस इज अबाउट 30 to 50 किलो जूल पर ग्राम। ब्यूटेन यानी कि एलपीजी, जो कि हम लोग अपने घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी इज 50 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। मीथेन 55 किलो जूल पर ग्राम। हाइड्रोजन गैस 150 किलो जूल पर ग्राम। यहां से आप पता कर सकते हैं कौन सा फ्यूल बेहतरीन एनर्जी आपको प्रोवाइड कर सकता है, कम इनपुट में यू कैन गेट दी मोर आउटपुट। दैट इज द मेन थिंग अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। अब आप खुद से देखिए कि कोई भी पर्सन अगर एनर्जी एफिशिएंट बनना चाहता है, ठीक है, या फिर किसी एक फ्यूल को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करना चाहता है, सो ही कैन और शी कैन लुक अप टू दिस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। हाइड्रोजन गैस में अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है, इट इज टोटली हाइड्रोजन बेस्ड, राइट। तो यू कैन गेट अप टू द 150 किलो जूल एनर्जी पर ग्राम ऑफ द फ्यूल। दिस इज सो मच बिग, राइट। और इन सब में से जिसकी कम है दैट इज द डंग केक, राइट। यू आर गोइंग टू गेट सो मच लेस एनर्जी ओवर देयर विद द 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल। सो बाय जस्ट वॉचिंग दिस टेबल यू आर गोइंग टू गेट दैट कि आपको कौन सा फ्यूल ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कम अमाउंट ऑफ फ्यूल में, राइट। यू कैन गेट अप टू दैट। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसी यू कैन से स्टेटमेंट जिनके बेसिस पे यू कैन गेट अप टू दैट कि आप कौन से फ्यूल को ज्यादा यूज करें और कौन से फ्यूल को कम यूज करें, ठीक है। तो बेस्ट फ्यूल अमंग दीज, इन सब में से जो बेस्ट फ्यूल है दैट इज हाइड्रोजन। ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, so a fuel containing higher percentage of hydrogen will have a higher calorific value than another fuel,
which has a lower percentage of hydrogen in it. तो अगर किसी फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, so you are going to use that fuel more as you are going to get less input and the more energy, right? That is the main thing. That's why best fuel should be the one which has higher amount of hydrogen in it. ठीक है? और fuel to be avoided, ऐसे fuel जो आपको avoid करने चाहिए, what can be? Wood is a mixture of carbon compounds called carbohydrates like cellulose, that is C6H10O5N. Thus, when wood is burned, only carbon and hydrogen atoms contained in it burn and produce heat. ठीक है, जब कभी भी आप किसी वुड को जलाते हो तो हाइड्रोजन और कार्बन के अमाउंट्स ही बर्न आउट होते हैं. रिमेंबर द एशेज यू गॉट, राइट? तो जो एशेज हमें मिलते हैं यानी कि रिमेन्स हमें जो मिलते हैं वो बाकी का बचा कंटेंट होता है, उसमें से हाइड्रोजन और कार्बन तो हट जाते हैं, दे गॉट बर्न, राइट? जो कुछ भी बचता है इन द फॉर्म ऑफ एशेज वो उसका रिमेन्स होता है. ऑक्सीजन एटम्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी हीट, दे ओनली हेल्प इन द बर्निंग प्रोसेस. So due to comparatively lower percentage of carbon and hydrogen in wood, it has a low calorific value. So you are going to get very much low calorific value because उसके अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भी है और वो किसी भी तरीके का एनर्जी हीट प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है, राइट? तो जिस भी फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा दैट वुड बी मच मोर बेटर टू यूज़, ठीक है, एंड उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा. अगर किसी यू कैन से फ्यूल के अंदर कार्बन का प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, उसका ज़्यादा एटम्स होते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट लो कैलोरीफिक वैल्यू ओवर देयर. ठीक है, तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए. ऑलराइट, तो ऐसे फ्यूल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी बर्न तो होते हैं बट दे गिव वेरी मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर देयर. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज we need to make sure that we use the fuel more and more which has higher amount of hydrogen in it. All right, now let's talk about the solar energy. हम लोगों ने fuels के बारे में डिस्कस कर लिया है, right? हम लोगों ने calorific value के बारे में डिस्कस कर लिया है. Now let's talk about the energies over there, the various types of energy present over there. So the first one we are going to discuss is the solar energy. ऑलराइट, सो बेसिकली सन से हमें मिलती है, ठीक है, सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है. सन इज दी यू कैन से अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. व्हाई सो? बिकॉज सन की एनर्जी वुड बी लाइक रेगुलरली आपको अवेलेबल होगी एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? सो वी कैन से दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर देयर. द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. सभी लिविंग बींग्स के लिए वही एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, सन. That is so important. हालांकि ये एक स्टार है, राइट, a luminous object. It provide all of us heat and light. ये हम सभी को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, राइट? देखिए फिर, the energy generated by the sun is the result of the reaction called nuclear fusion occurring continuously in the interior part of the sun. So basically sun को ये एनर्जी कहाँ से मिली? हीट और लाइट एनर्जी जो सन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये एनर्जी उसके पास कैसे आई? वो एनर्जी आई है उसके कोर से. उसके कोर में यानी सन के कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं. फ्यूजन मींस हाइड्रोजन एटम, जो यू कैन से हाइड्रोजन एटम जो हैं जब कभी भी फ्यूज करते हैं, उनके न्यूक्लियर जब फ्यूज करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू वन, यानी कि हीलियम में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, दो न्यूक्लियाई ऑफ द हाइड्रोजन दे गॉट फ्यूज, दे गॉट कंबाइंड एंड दे गिव आउट वेरी मच हाई एनर्जी अलॉन्ग विद दिस, along with the helium atom over there. ठीक है, सो ये जो कन्वर्जन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रही है इन द कोर ऑफ द सन, दिस इज द रीजन दैट इट इज एबल टू emit the light and the heat energy and the temperature over there. ठीक है, फिर देखिए, hence
he was a physicist, ठीक है. इन्होंने क्या किया था? He proposed that enormous release of energy from the sun is due to fusion, right? उन्होंने बताया इतनी सारी जो एनर्जी हम तक पहुंच रही है, सन के खुद के पास इतनी सारी जो एनर्जी प्रेजेंट है वो सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से है, यानी कि कॉम्बिनेशन की वजह से है. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स टू यील्ड अ सिंगल हीलियम एटम. मतलब अगर 4 हाइड्रोजन एटम जब मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे गिव आउट द हीलियम एटम, ऑल्सो दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर देयर. रिमेंबर, न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी मच, यू कैन से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, एंड वही जहां पर रिलीज होते रहती है, राइट. दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ एनर्जी ओवर देयर. ठीक है, वहां से हमें इतनी सारी एनर्जी मिलती है. एंड फॉर दिस डिस्कवरी ही गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. दैट इज अ कूल थिंग, राइट. द सन एमिट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस. ये तो बात हमें पता है, सभी डायरेक्शंस में सन, बिकॉज सन इज लाइक अ स्फेयर. ठीक है, उसका शेप हमें स्फेयर दिखाई देता है. सो बेसिकली वो हर एक डायरेक्शन में सनलाइट को एमिट करते रहता है, राइट. तभी तो हम जब उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, एवरी सिंगल टाइम वी आर गोइंग टू गेट द एनर्जी, द सन्स एनर्जी, राइट. चलिए देखिए, सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशन एंड पॉन्ड्स. ये सभी जो चीजें हैं वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, लैंड गर्म हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग द सन्स हीट, राइट. वाटर में से वाटर इवापोरेट हो जाता है, ह्यूमिडिटी एयर में से चली जाती है, राइट. प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं सो दे कैन फुलफिल द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट. हम लोगों को जो है सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग भी. सो बेसिकली एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्बिंग दीज सोलर एनर्जी. ठीक है, plants use solar energy to manufacture food by photosynthesis, and solar energy is also the source of wind, storms, rain, snowfall and ocean waves. Basically he is the main source of all these things, right. जो भी चीजें होती है, because we all know कि sun की heat की वजह से land warm up हो जाता है. Uneven heating of the earth is the result of the storms and the wind over there. पोल से इक्वेटर की तरफ जो विंड आती हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, वो क्यों चलती हैं? बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट फॉल होती है तो वो इलाका काफी गर्म रहता है. सो बेसिकली ये जो हीट और लाइट एनर्जी मिल रही है, ये हर किसी का एक तरीके से रीजन बन सकती है, राइट. इट इज द पेरेनियल फॉरएवर सोर्स ऑफ एनर्जी. आपको हमेशा ये सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी, राइट. दैट इज व्हाई इट इज द पेरेनियल वन. ठीक है, तो लेट्स सी अप टू सम ऑफ दिस फीचर. कुछ फीचर्स देखते हैं. भाई ये जो सनलाइट होती है, ठीक है, ये किन रेज में आपको मिलती है? ऑलराइट, लेट्स सी. इट कम्स टू द अर्थ सरफेस इन अ मच डिफ्यूज्ड फॉर्म. ठीक है, ये धरती तक तो पहुंचती है बट काफी ज्यादा डिफ्यूज्ड फॉर्म में पहुंचती है. देखिए, अपर एटमॉस्फेयर गेट्स 1.3 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर. जो सबसे आउटर एटमॉस्फेयर है, मतलब हमें ये पता है कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में है. ठीक है, ऊपर जाते 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 जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा ठंडा वहां पे टेम्परेचर होता है, राइट. जब कभी भी सनलाइट वहां फॉल होती है, वो कितनी फॉल होती है? अगर हम आउटर एटमॉस्फेयर की बात करें, वो होती है 1.3 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ओवर देयर. ठीक है, लेकिन इसके अंदर से सिर्फ 47% ही ऐसी एनर्जी है, यानी कि 0.64 किलो जूल की एनर्जी ही ऐसी होती है जो धरती की सरफेस तक पहुंच पाती है. गॉट इट? तो मतलब काफी कम अमाउंट धरती की सरफेस तक पहुंच पाता है. आउटर सरफेस को काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है, ऑलराइट. यानी कि अर्थ की सरफेस तक ओनली 0.64 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर अर्थ की सरफेस पे पहुंच रही है. ठीक है, फिर देखिए, मोर ओवर दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली एंड कीप्स चेंजिंग एवरी डे एट अ प्लेस इन टू प्लेस ड्यूरिंग अ डे. एंड वी ऑल नो दैट इक्वेटर पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल होती है, पोल्स पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल होती है. लिटरली वी कैन से दैट कि ये जो सन की एनर्जी है, दिस इज नॉट इवन, राइट. वी कैन से दैट. तो बेसिकली जितना भी एनर्जी फॉल होता है उसमें से काफी कम अमाउंट हमें मिलता है, राइट. एंड दैट इज वेरी लो, दैट इज 0.64 किलो जूल एंड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, राइट. दैट इज द मेन थिंग कि हमें कितना कम सोर्स जो है एनर्जी मिल रही है. स्टिल इतना कम एनर्जी मिलने के बावजूद भी वी
are you can say we can trap this energy and we can make sure that this energy is converted into something useful we use, right? Like the electricity one. All right. Now let's see the composition. ये जो सनलाइट होती है ये 3 रेज की बनी होती है, मीन्स यू कैन से कि 3 रेज कंबाइंडली हमारे तक पहुंचती हैं, अर्थ तक पहुंचती हैं, जिसमें से हम लोग सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाते हैं। मतलब हमारे लिए जो हमारी आंखों को विजिबल होती है, हमारी आईज जिस रे के लिए सेंसिटिव होती हैं, दैट इज द विजिबल लाइट। इट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स, वी नो दैट, राइट? 7 कलर्स, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑलराइट, सो बेसिकली ये जो विबग्योर हमें मिल रहा है, ठीक है, ये है ओनली विजिबल लाइट जो हमें समझ में आता है। वी आर अनेबल टू सेंस द यूवी रेज एंड वी आर अनेबल टू सेंस द इंफ्रारेड रेज। हालांकि ये भी धरती तक पहुंचती हैं, ठीक है। जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज को देख पाती हैं, राइट? तो उनको पता चल जाता होगा कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज एंड रेज वन बाय वन। सबसे पहले हम अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में बात करते हैं। सो देखो, ऐसी रेज जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारे लिए इनविजिबल होती हैं, ठीक है। द इनविजिबल रेज whose wavelength is shorter than that of visible violet light are called ultraviolet rays, ठीक है। सो वॉयलेट के जो कम रहता है, मतलब वॉयलेट लाइट के पास जितना वेवलेंथ रहता है, उस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाली जो एनर्जी हो, जो रेज होती हैं, वो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। उनका नाम अल्ट्रावायलेट रखा गया क्योंकि वो वॉयलेट कलर से छोटी हैं, ठीक है। फिर आप देखिए, हम इन यू कैन से इन रेज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन डिटेक्ट दीज रेज बाय यूजिंग अ फोटोग्राफिक फिल्म और अ फ्लोरोसेंट पेपर बिकॉज दे डार्कन द फोटोग्राफिक फिल्म जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लाइट रेज। ये क्या कर देते हैं, उसे डार्कन कर देते हैं। सो इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दीज, यू कैन यूज द फोटोग्राफिक फिल्म और द फ्लोरोसेंट पेपर ओवर देयर, ठीक है। सो इससे आप डिटेक्ट कर पाएंगे यूवी रेज को, यानी अल्ट्रावायलेट रेज को, ठीक है। फिर देखिए, दे आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड फूड स्टफ एंड ड्रिंकिंग वाटर। जनरली अल्ट्रावायलेट रेज इस काम में यूज आती है क्योंकि वो बैक्टीरियाज को खत्म कर देती है, उनको किल कर देती है, ठीक है। फिर देखिए, टू मच अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ ड्यू टू इट्स आयनाइजिंग इफेक्ट एंड कैन कॉज स्किन कैंसर, ठीक है। ये भी हमारे लिए जो है काफी यू कैन से डेंजरस है बिकॉज दे कैन कॉज दी स्किन कैंसर ओवर देयर। क्यों ऐसा कर पाते हैं? उनका आयनाइजेशन इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, राइट? दे हैव द शॉर्टर वेवलेंथ, रिमेंबर दैट इज द रीजन दैट दे आर यू कैन से टू मच विल बी द डेंजरस वन फॉर अस, ठीक है। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यूवी जो रेज होती हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यूवी ए यानी कि ये हमारे तक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पहुँचता है। यूवी बी हमें काफ़ी सिंगल अमाउंट में पहुँच रहा है, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में पहुँच रहा है। एंड यूवी सी हम तक नहीं पहुँचता, ठीक है। वो हमारे ओजोन लेयर से ही बाहर चला जाता है, मतलब वो जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है हम लोग के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम विजिबल लाइट रेज। तो यहाँ देखिए, विजिबल रेज whose wavelength range from 400 nanometer to 700 nanometer is called visible light. So all the 7 colors inside is in the range between the 400 nanometer to 700 nanometer. Alright, ये जो विजिबल पार्ट होता है सनलाइट का, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। एवरी कलर हैज द डिफरेंट वेवलेंथ। ऑलराइट, ये जो विजिबल पार्ट होता है सनलाइट का, वो 7 डिफरेंट कलर्स का होता है। दैट्स इट, दैट वुड बी द रेडिएशंस वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द विजिबल लाइट रेज, ठीक है। अब आता है इंफ्रारेड, यानी जिनका वेवलेंथ रेड कलर से ज्यादा होता है, ऐसी रेज। द इनविजिबल रेज whose wavelength is longer than that of the visible red light are known as the infrared light, ठीक है। तो ये जो इंफ्रारेड लाइट होता है, इसमें ज्यादातर हीटिंग पार्ट होता है। मतलब ये क्या करती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, उसको हीट अप कर सकता है। मोस्टली दे कैन हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गिरती है वो हीट अप हो जाती है। तभी तो ये जो हीट एनर्जी हमें मिल रही है, ये किस फॉर्म की है? ये हीट एनर्जी एक्चुअली में किस फॉर्म में है? इंफ्रारेड रेज फॉर्म में, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ द सोलर एनर्जी कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। तो जितना सोलर एनर्जी हम तक पहुंच रहा है, उसका 1/3 इंफ्रारेड वेव्स जो है हमें मिलती हैं, उसका 1/3 पार्ट है इंफ्रारेड वेव्स।
They can be detected by its heating effect by using a thermometer. So they can be detected just by the heating. कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हीटअप हो गई है उसकी वजह से तो वो डिटेक्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है। कोई भी मेटल अगर आप बाहर छोड़ देते हैं सन में तो वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, राइट। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स इंफ्रारेड रेज। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशंस गिव आउट करती है, एंड दोज रेडिएशंस आर द इंफ्रारेड रेडिएशंस और द इंफ्रारेड रेज, ठीक है। दे आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक्स। बॉडी में कहीं भी अगर दर्द होता है तो उनके रिलीफ के लिए भी वी यूज द इंफ्रारेड वेव्स ओवर देयर, ठीक है। तो सनलाइट का ये कॉम्पोजिशन हुआ। कॉम्पोजिशन के अंदर यू आर गोइंग टू गेट विजिबल लाइट, आपको फिर मिलती है अल्ट्रा वायलेट रेज, एंड देन कम्स अप टू द इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव जो होती है वो मोस्टली हीटिंग अप करने के लिए होती है। विजिबल रेज मोस्टली देखने के लिए, भाई हमें लाइट प्रोवाइड हो रही है, राइट, एंड वी ऑल्सो गॉट द अल्ट्रा वायलेट रेज ओवर देयर, ठीक है। फिर आप देखिए यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। बेसिकली एवरीबडी नोज सोलर एनर्जी का बहुत 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 ज्यादा यूज है, ठीक है। देखिए सोलर कुकर एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कुक फूड। तो बेसिकली वी कैन कुक फूड, राइट, बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी ओवर देयर। सोलर वाटर हीटर आर यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर, ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए सोलर हीटर वाटर यूज होते हैं। Alright, solar cell converts solar energy into electricity to run watches, calculator and in spaceships for various experiments over there. तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल क्या होता है, सोलर पैनल कंटेन्स द सोलर सेल ओवर देयर, ठीक है। तो वहां पे सोलर सेल्स होते हैं जो कि सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और उस बैटरी में स्टोर कर देते हैं। फिर उस बैटरी में स्टोर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी होती है स्टोर, वही आपको जो है मिल सकती है। नाउ यू कैन यूज दैट इन एनीथिंग, इवन व्हीकल्स को चलाने के लिए वी कैन यूज अप टू द सोलर एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए तो फिर भी यूज होता ही होता है। सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। Now let's look up to the various facts that जो solar energy है वो definitely food grains को dry out करने के लिए, क्योंकि it takes out the moisture। क्यों? क्योंकि infrared wave जब गिरती है तो उसका temperature बढ़ जाता है चीज़ों का, एंड टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ पे प्रेजेंट जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। सो इट कैन ड्राई अप द ग्रेन्स एंड ऑल्सो दी यू कैन से ड्राइंग क्लोथ्स। अगर ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर रह जाता है तो उसके खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा अनाज वेस्ट हो सकता है, राइट। दैट इज़ वाई फर्स्ट उसे पहले सन में रखा जाता है, थोड़े दिन उसका सारा मॉइस्चर हटाया जाता है बाय सन्स एनर्जी, सनलाइट डेफिनेटली। उसके बाद उसे स्टोर किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। ऑलराइट, सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर को इकट्ठा करके, राइट, एंड देन जब उसमें से सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो वहाँ सॉल्ट बच जाता है। सो सॉल्ट बनाने के लिए फ्रॉम द सी वाटर हम लोग जो है सोलर एनर्जी यूज करते हैं बेसिकली, राइट। नाउ लेट्स लुक अप टू द एडवांटेजेस। क्या उसके एडवांटेजेस हैं सोलर एनर्जी के? देखो, सबसे पहला इनएग्जॉस्टेबल है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको एवरीडे प्रोवाइड होगा, राइट। मे बी लेस अमाउंट में प्रोवाइड हो, कभी ज्यादा कभी कम, बट दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू एवरी सिंगल डे, right? And as it is producing continuously the core of the sun by nuclear fusion of hydrogen atoms. Basically, hydrogen atom का nuclear fusion होता है, that is how we are going to get the energy from there, right? और वही energy inexhaustible है and renewable है, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है और हमें पूरे यू कैन से पूरी अर्थ पे अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं जगह पे कम है, किन्हीं जगह पे ज़्यादा है, राइट। अब देखिए, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है। इट कैन बी पुट टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और हम लोग उसे प्रैक्टिकली यूज भी कर सकते हैं। सो इट इज लाइक यूजफुलनेस ऑफ इट, राइट, एडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अप टू द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या हुई? लिमिटेशंस हुई कि भाई ये हमें नाइट में अवेलेबल नहीं होगा, कुछ ही देर के लिए हम लोग को ये अवेलेबल होती है सोलर एनर्जी, हमको यूनिफॉर्मली ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं होती, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेज फॉल होती हैं, पोल्स पे कम इंटेंसिटी वाली रेज जो है फॉल होती हैं। सो बेसिकली वी कैन गेट अप टू दैट कि अनइवन हीटिंग और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट रेज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल फॉर द होल वर्ल्ड। सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज क्वाइट डिफ्यूज्ड एंड स्कैटर्ड फॉर्म एंड हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड। जितनी गिरती है फॉलिंग, जितना ज़्यादा अमाउंट लाइट एनर्जी का
हमारे आउटर सरफेस तक पहुंचता है उतना अमाउंट धरती की सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, एंड दैट इज द मेन रीजन कि हमें कुछ फ्रैक्शन ही एनर्जी ऑब्टेन होती है, राइट और उस एनर्जी को भी यूज करना इट इज अ क्वाइट अ चैलेंज फॉर अस. It is not available at constant rate due to clouds, fog, mist, haze and winds. आपको constantly नहीं मिल सकते because during winters you are going to get these things: clouds, fog, mist, haze, wind. Even in the you can say rainy season, you get very much less amount of sunlight over there. And that is the main reason कि ये उतना ज़्यादा अच्छा हम लोग नहीं मान सकते. If we are going to get the constant you can say sunlight, then it can be useful, right? But it's still very useful. आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए. ऑलराइट, सो सोलर एनर्जी के बारे में जो रिमेनिंग बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोर फॉर्म ऑफ एनर्जी ओवर देयर ऑल्सो. सो स्टे ट्यून and thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.